Our today's topic is dipole kept in electric field. हमने ये पढ़ा है कि डायपोल खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, दैट इज देयर. कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें जब हम डायपोल को रखते हैं तो डायपोल किस तरह से बिहेव करता है. डायपोल बेसिकली क्या होता है, दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस kept at certain distance. We keep it in a certain electric field. For the sake of convenience, we take this electric field as uniform electric field. This is a uniform electric field. E. A dipole is kept in this uniform electric field. Now, this is made of two charges, and any charge kept in electric field experience force. Any charge kept in electric field experience force. How much force this will experience? Answer: this will experience a force F is equal to Q into E. In which direction will it experience the force? Answer: in the direction of E. So this will experience a force in the direction of E, and let us make this is the force in direction of E. Okay. Now this is negative charge. Negative charge also experience force which is in the direction opposite to E. So negative charge force QE, force QE. Now we have to calculate two things. What will be effect on this dipole? What is the net force and what is the net torque? Net force. There is one body. This is one body of dipole which is experiencing two forces, plus QE and minus QE. If we take them with direction, it is minus, that is plus. So net force in uniform field of intensity E is QE minus QE is 0. This is the net force on a dipole kept in a uniform electric field. When we say uniform electric field, then remember the value of E at this point, the value of E at this point is same. Therefore, QE this force and QE this force is also same in magnitude but opposite in direction, so they can cancel each other. If it is a non-uniform, then this E will be larger or smaller. Then these two forces will not be equal, and then their sum will also not be 0. Okay, so net force on this is 0, and what happens with 0 net force? It do not have any linear motion. Okay. Now if it is not having force, then does it have any torque? So we will now examine whether it has got any torque. For the torque, what are the two conditions? What does a torque do? The torque rotates a body. That we have done in rotational motion. Torque is responsible to rotate a body. And what constitutes a torque? Answer is a couple of force constitutes a torque. What is couple of force? Couple of force, two forces applied on one body. There is one body, there are two forces which are equal and opposite, necessary, equal and opposite directions, and there should be certain distance between the two.
They must be acting at different points, and there should be certain distance between the two. That couple of force create torque. Like we are applying force on a cycle handle. One force in this direction, one force in this direction. These are two equal and opposite forces applied at two different points, and there is a perpendicular distance between them. This makes a couple of force, and this couple of force creates torque, and because of that torque it will start rotating. Does the same thing happens in a dipole? We will examine it. At this point of the dipole, there is a force in this direction. At this point, there is a force on this direction. There are two forces on one body. These two forces are equal in magnitude, opposite in direction. Therefore, this will make a couple of force. Is there any perpendicular distance between the two? Answer is yes, there is a perpendicular distance between the two. This is direction of this force, this direction. This is this direction, and there is perpendicular distance between the two. BC is the perpendicular distance between direction of this force and direction of this force. So this makes a torque. Okay, now this the same thing. Now we will write it. How much is torque equal to? Torque is equal to force multiplied by distance between the forces. This is equal to, how much is the force? The force is QE. The distance between the forces is, see there, this is BC. This line BC is the distance between two directions of the force. Okay. Now, this BC we want to convert into given quantities. These charges are Q, and this distance between the two charges we take as 2L. Right? You know this? You also know that dipole moment is equal to, okay. Now, the direction of this dipole at this particular moment is that it makes an angle theta with electric field E. This is the direction of what? Dipole moment. From minus to plus. That is the direction of dipole moment P. This is the direction of electric vector E, and the angle between the two is theta. In this case, BC upon 2L is what? Can you tell me? Yes, it is sine theta. So BC is equal to 2L sine theta. So this we are using here, and this will be converted to QE and 2L sine theta. Now see here, Q multiplied by 2L. What is that Q multiplied by 2L? P. So this is P E sine theta. This is what? Torque. Is it 0? Answer is no. It has certain magnitude. So that means the torque acting on a dipole is a quantity. It's not 0. What was 0? The force. If the net force is 0, then what cannot happen? Answer: linear motion. If the torque is there, then what can happen? Rotational motion. That means a dipole kept in an electric field is able to rotate. It is not able to move. Linear motion it cannot have, but it can have a rotational motion because it experiences a torque, but the net force is 0. Okay. So ये हमने इसमें रिजल्ट निकाला. Do not have linear motion,
और इससे क्या पता लगा, इट कैन हैव, यस, तो डायपोल घूम सकता है, सीधा नहीं चल सकता लीनियर मोशन में। अब P इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन कहां होती है, -q to +q। E is a vector quantity, some direction is given. There are multiplication of two vector quantities with sin theta. What type of multiplication is this? And tell me, what is this? Torque. Torque is a scalar or vector quantity? Vector quantity. So a vector quantity is created by multiplication of two vector quantities. What type of vector product it is? Yes, it is a cross product. And what is the magnitude of cross product? A cross B, vector A cross vector B has a magnitude of AB sin theta. So P cross E has a magnitude of PE sin theta. Here it is PE sin theta. Therefore, what we can write is vector P cross vector E. This is torque. Now, this has become a vector form for the torque on a dipole. So, you have to remember both things. The vector form, you will write torque is equal to P cross E. How much is the magnitude? PE sin theta. Correct? Okay. So, this gives us the torque on dipole kept in a uniform electric field. There may be questions. If the electric field is not a uniform, then what will happen? I have given part of the answer. If it is not uniform, then one of the force will be more and one will be less, and there will be net force. If the force is not zero and there is a net force, then what will happen? There will be a linear motion. ठीक है? अब एक और सिचुएशन सोचिए, उस समय रोटेशनल मोशन होगा कि नहीं होगा? अगर ये दोनों E इक्वल नहीं हैं, जैसे किसी एक लोकेशन पर ऐसे E है, ये, और यहां हमने डायपोल को रखा। यू सी हियर कंसंट्रेशन ऑफ द लाइंस आर मोर, तो यहां E ज्यादा स्ट्रांग है और यहां E वीक है, तो दोनों पे लगने वाले फोर्स अलग अलग होंगे एंड देयर विल बी ए लीनियर मोशन। कैन यू टेल मी, E इधर है, ये -q है, ये +q है, इसमें लीनियर मोशन होगा, राइट? क्योंकि दोनों के फोर्सेस अलग अलग हैं। अब जरा ये बताइए कि ये लीनियर मोशन के कारण ये वाला डायपोल लेफ्ट में जाना शुरू करेगा कि राइट में जाना शुरू करेगा? सोचो, जिधर फोर्स ज्यादा होगा, किधर फोर्स ज्यादा होगा? दोनों में Q है, जिधर E ज्यादा होगा। E कहां ज्यादा है? यस, तो ये किस तरफ जाएगा? लेफ्ट की तरफ जाएगा। देयर विल बी ए लीनियर मोशन टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक, अब इसमें रोटेशनल मोशन होगा कि नहीं होगा? ओके, सुनिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये फोर्स है 10, यहां पर एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये फोर्स है 7। ये कम फोर्स है, ये ज्यादा फोर्स है। ओके, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 3। बिकॉज ऑफ दैट नेट फोर्स इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। लेकिन इसके पास 7 है, इसके पास 7 है कि नहीं है? है, 7 भी है और उसके एडिशनल 3 भी है। उस एडिशनल 3 के कारण वो क्या करता है? लीनियर मोशन। पर उस 7 के कारण वो क्या करेगा? इसके साथ जोड़ी बनाएगा। इट विल मेक ए कपल। 7 इधर, 7 इधर, ये डायपोल है, 7 इधर, 7 इधर, तो ये ऐसा घूमा। तो उस 7 के कारण क्या करेगा? रोटेट। और बाकी वाले 3 के कारण क्या करेगा? लीनियर। तो ये क्या होगा? दिस विल गो लाइक दिस। ये देखिए, रोटेट भी किया और मूव भी किया। समझ आया? सो दिस इज ए पर्टिकुलर केस व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट uniform. Point clear? Okay. Now, once we have done it,
we will do next quantity related to it, and that is if we rotate a dipole in electric field, do we have to do some work? The answer is yes, we have to do some work. टॉर्क किससे बनता है? फोर्स से। और जब हम एक डायपोल को घुमाएंगे ऐसे, फोर्स लगाएंगे और ये डिस्प्लेसमेंट करेंगे, whenever there is a force and whenever there is a displacement, what is done? Work is done. इसका मतलब वर्क तो हमको करना पड़ेगा, ठीक है? So whenever a dipole is rotated in electric field, some work has to be done on it. Either we do a work or dipole is doing a work, right? So now we will study the work done on a dipole when it is rotated. Work done in rotating a dipole. So we have kept a dipole in uniform electric field and we want to rotate it. हमने उसको रोटेट किया और एक पर्टिकुलर टाइम पर हम देख रहे हैं कि वो थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. ओके, सो आई विल मेक दैट डायग्राम. वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल. दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन. This vector represents it. We have kept a dipole here, and at any particular moment the dipole is making certain angle theta. This is dipole and minus q plus q. This angle is theta and this is direction of vector p. Okay, this is direction of vector E, electric field, and there is angle between the two, theta. Okay. Now to bring it into this condition, इतना घूमा हुआ अभी ये यहाँ पर है, कैसे आ गया? तो आंसर है हमने कुछ ना कुछ काम किया इस पे. तो थीटा एंगल पर लाने के लिए हमको कितना काम करना पड़ा? तो आप उसमें पूछेंगे काम करना शुरू कब किया था? तो हमने ये बताया कि हमने काम करना तब शुरू किया था जब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, टॉर्क जीरो होता है. टॉर्क जीरो कब होता है? आई एम सॉरी, वो हम स्पेशल कंडीशन भूल गए. लेट्स मेक हियर स्पेशल कंडीशंस. नोट कर लीजिए स्पेशल कंडीशंस. स्पेशल कंडीशन. स्पेशल कंडीशन कब क्रिएट होती है? जब थीटा डिफरेंट होते हैं. ये हम रोटेट करते जा रहे हैं. सो कंडीशन नंबर 1, P along E. ये कंडीशन कब होगी? ये रहा E और ये रहा P. दोनों के बीच एंगल कितना है? 0. इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? P is along E. थीटा इज इक्वल टू 0. अब अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो बताइए टॉर्क कितना होगा? वेरी गुड, टॉर्क इज इक्वल टू 0. समझ आया? अगर टॉर्क 0 होगा तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? आंसर है नहीं घूमेगा, अपनी जगह पे खड़ा रहेगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके. उसके बाद हमने इसको घुमाया और अब सेकंड कंडीशन आ गई. दिस E यही है और इसको हमने घुमाकर ऐसे 90 डिग्री तक घुमा दिया और ये यहां पर ये आ गया P. अब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? यस, सेकंड P नॉर्मल टू E. थीटा कितना लेना? 90 डिग्री. अगर थीटा को 90 डिग्री लेते हैं तो टॉर्क कितना हो जाएगा?
ये थीटा को 90 डिग्री रखा, सो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। और ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए टॉर्क की भी ये मैक्सिमम वैल्यू है। सो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई एंड दिस इज व्हाट, मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन, और घुमाया हमने टॉर्क को, इसको तो और घुमाने से ये है E और ये है P। नाउ व्हाट इज द एंगल? वेरी गुड, P अपोजिट E, तो थीटा कितना लेना है? 180 डिग्री। If this theta is 180 degree, then put it here, 180 degree. How much is the torque now? Very good. Minus P. ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते? साइन 180 कितना होता है? 0, not minus P. Okay, so torque कितना हो गया? 0. If torque is 0, then will it try to rotate? No. ठीक है, तो ये ऐसा का ऐसा खड़ा रहेगा, यहां पर भी खड़ा रहेगा, लेकिन इस कंडीशन में दिस विल ट्राई टू मूव। ठीक है, ये प्लस पी लगेगा, ये ऐसा मूव करने की कोशिश करेगा। ओके, अब चौथी कंडीशन हम लेंगे तो ये यहां पर ऐसा आ जाएगा, दैट विल बी 270 एंड द टॉर्क विल बी माइनस पीई। करेक्ट, फिर वो घूमने की कोशिश करेगा। तो इसमें फिर से एक चीज याद करिए, व्हाट इज मीन्ड बाय ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन? ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, आंसर, व्हेन द नेट फोर्स on a body is 0 as well as the net torque is 0, then the body is supposed to be in equilibrium. न तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और न वो रोटेट करेगी। जैसे ये पंखा है, ये पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पंखा चल रहा है, पर ये चल के कहीं जा नहीं रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये रोटेट कर रहा है, लीनियर मोशन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इस पे लगने वाला टॉर्क भी 0 हो जाएगा तो ना तो ये लीनियर मोशन करेगा और ना ये रोटेशनल मोशन करेगा। दिस इज परफेक्ट इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? लीनियर इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो ये लीनियर इक्विलिब्रियम है क्योंकि लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, और ये टोटल इक्विलिब्रियम है। और अगर मैंने एक व्हील को हाथ में पकड़ा, ये, और ये मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? रोटेशनल, क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहां पर टॉर्क के पास इक्विलिब्रियम है, नो फोर्स नो टॉर्क, नो फोर्स नो टॉर्क, ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस हो गई। अब एक और इसमें बहुत फाइन पॉइंट आपको समझना है, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी रेयर टू अंडरस्टैंड, और ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि इन दोनों इक्विलिब्रियम में एक इक्विलिब्रियम स्टेबल है और एक अनस्टेबल है। विच इक्विलिब्रियम इज स्टेबल एंड विच इज अनस्टेबल? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होते क्या हैं। तो इसको इस तरह से समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है एंड वी डिस्टर्ब इट, इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। देयर मे बी 2 एक्शंस। एक एक्शन ये होगा कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आएगा, और दूसरा एक्शन ये होगा कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस नहीं आएगा, जिधर हमने मूव किया उधर ही मूव होता चला जाएगा। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, ये मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी को मैं वर्टिकल कंडीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाता हूं। ये वर्टिकल पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पे आ गई। अब ये नहीं खड़ी है, ओके, ये इक्विलिब्रियम में है। कौन सी कंडीशन? वर्टिकल।
ये भी इक्विलिब्रियम में है, कौन सी कंडीशन? वर्टिकल। दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, दिस इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन से मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं, डिस्प्लेस करता हूं, एंड आई डिस्प्लेस इट लाइक दिस। अब मैं इसको छोड़ूंगा, ये वापस भी आ सकती है और इधर भी जा सकती है। ओके, सो आई डिस्टर्ब इट एंड लीव इट। वापस आई क्या? नहीं आई। फिर से ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, मैंने इसको डिस्टर्ब किया, इतना टेढ़ा कर दिया, छोड़ दिया, वापस आ गई। फिर से डिस्टर्ब किया, डिस्प्लेस किया, फिर छोड़ दिया, फिर वापस आ गई। ये भी इक्विलिब्रियम था और ये भी इक्विलिब्रियम है। एक इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेस करो, वापस नहीं आता। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल, डिस्टर्ब करोगे हट जाएगा। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, डिस्टर्ब करिए वापस आ गया। ये होते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हमने ये स्टडी करना है, इफ देयर आर टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ ए डाइपोल, which one is stable and which is unstable? Which are the two conditions? One, P is along E, other P is opposite to E. Okay, so यहाँ stability, ये E है और ये P है। इसको हमने डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करके ऐसे कर दिया। हाउ आर द फोर्सेस? दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ ई। ये आप लोगों ने पढ़ा है। अब इस पर टॉर्क लगाइए और घुमाइए, ये वापस अपनी पोजीशन में जाएगा कि और दूर चला जाएगा। हमने इसको ऐसे घुमाया और घुमाकर छोड़ दिया। अब बताइए, इस पर जो ये दो फोर्स लग रहे हैं, जो टॉर्क बन रहा है, वो टॉर्क इसको वापस लाएगा कि और घुमा देगा? ये एक डंडा है, इस डंडे को इधर से पकड़ा, इधर फोर्स लगाना है, इधर से इधर फोर्स लगाना है, ऐसे। किधर घूम रहा है ये वापस आ जाएगा। सो दिस विल रिटर्न बैक टू इट्स कंडीशन। और जब ये रिटर्न बैक होता है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा है? ओके, दिस इज E एंड दिस इज P। दिस इज अगेन इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को हमने डिस्टर्ब किया ऐसे। यहां पर कौन था? माइनस, और यहां पर प्लस। फोर्स कैसे लगेंगे? प्लस क्यू पे अलोंग द ई, ये वाला फोर्स लगा, क्यू ई। इस पर फोर्स कैसा लगता है? अपोजिट टू ई, क्यू ई। इन दोनों फोर्सेस को मिलाकर टॉर्क बनाइए एंड टेल मी व्हाट इज द रोटेशन, क्लॉक की एंटी क्लॉक? कैसा बना? एंटी क्लॉक। यानी ये जो फिर से ये ओरिजिनल कंडीशन थी, इसको हमने ऐसे घुमाया, थोड़ा सा एंटी क्लॉक घुमा के छोड़ दिया। जैसे ही हम छोड़ते हैं ये वापस आता है कि और घूम जाता है? और घूम जाता है, वापस नहीं आता। अब चूंकि ये वापस नहीं आता, इसलिए इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलता है? P अपोजिट टू E। ये समझ में आ गया? स्टेबल एंड अनस्टेबल। एंड नाउ वी कम बैक टू द वर्क डन बाय रोटेटिंग। A dipole is rotated from 0 to theta degree, and we have to find out how much work is done on it. Expression for that. What do we know? We know that it has got a dipole moment P and it is kept in an electric field E.
These are the given quantities. Dipole moment P, electric field E. These are the given quantities, and what we are supposed to find out is work done. Okay, work is equal to force into displacement, but that is in linear motion. ये rotational motion है, तो rotational motion में formula क्या होता है? Do you remember? Work done. Okay, याद रखिए, work is equal to force into displacement, that is x. Force into r multiplied by x upon r. r को multiply किया, r को divide किया. F into r is what? Torque. X into r. X is linear displacement, divided by r is angular displacement. So, what is the formula for work in rotational motion? Torque into angular displacement. Force की जगह क्या आ गया? Torque. और linear displacement की जगह angular displacement. चीज वही है. Force into displacement, rotational में torque into. But if we want to apply this formula, there is a precondition. The condition is, throughout this motion of theta, the torque should remain constant. Torque should remain uniform. अगर शुरू में torque 10 है, उसके बाद भी 10, उसके बाद भी 10, उसके बाद भी 10, so 10 is to be multiplied with theta, but that does not happen here. क्यों? Torque itself is P into E into sin theta. जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे टॉर्क खुद ही बदलता जाएगा. तो एक तरफ तो टॉर्क बदल रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो भी बदल रहा है. सो वी कैन नॉट डू दिस कैलकुलेशन, नॉट अलाउड. तो हमारे पास क्या तरीका है? ऐसे में हम क्या तरीका लगाते हैं? आंसर है कैलकुलस का तरीका लगाते हैं. क्या कैलकुलस का तरीका लगाते हैं? दिस थीटा इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल एंगल्स. ईच स्मॉल एंगल इज डी थीटा. डी थीटा, डी थीटा, डी थीटा, डी थीटा, टोटल मिला के क्या बन गया? थीटा. फॉर एवरी डी थीटा वी विल हैव ए वन क्वांटिटी ऑफ टॉर्क, एंड वी एज्यूम दैट फॉर दैट डी थीटा द टॉर्क रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दैट डी थीटा, बिकॉज डी थीटा इज वेरी स्मॉल. ठीक है? एट दैट टाइम अगर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे डी थीटा, स्मॉल डी थीटा, देन वी आर अलाउड टू कैलकुलेट द वर्क. ए वेरी स्मॉल वर्क इज गिवन बाय टॉर्क इनटू डी थीटा. ठीक है? टॉर्क इनटू डी थीटा. एंड व्हाट इज दिस? इनटू स्केलर और वेक्टर. So answer, work is a scalar quantity, so this is a dot product. Okay, so this is torque into d theta. This gives us a small work done. For how much rotation? d theta. तो हमने d theta rotation करके dw निकाला, फिर d theta किया, दूसरा dw निकाला, फिर d theta किया, तीसरा dw निकाला, और लास्ट में सबको सम कर दिया. And what is that sum known as? Integration. इसलिए अगर हमको पूरा थीटा का वर्क निकालना है, so this we will integrate and this we will integrate. तो ये हमारा फॉर्मूला बना, that work in rotational motion is equal to integration of torque d theta and whichever are the two angles. थीटा 1 से रोटेशन स्टार्ट किया और थीटा 2 तक गए. So this gives us, this is the expression for work done during rotation. Now this torque, if it is a constant, we will take it out. If it is not a constant, then it will remain inside. How do you know it's constant or not constant? We will find out whether torque is a function of theta. If it is a function of theta, then it's a variable. It will remain inside. If it's not a function of theta, it's a constant. It will go out. So we know a formula of torque, and that formula is Pe sin theta. Sin theta, so it's a function of theta. Okay, now this is equal to theta 1, theta 2,
PE sin theta d theta. Okay, this is work done from theta 1 to theta 2 rotation. Now we want to do integration of this. Here P is constant or variable. फिर से देखो, क्या P के फॉर्मूले में थीटा होता है? नो, इट इज 2QL, उसमें थीटा नहीं होता. सो इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. E, again it is not concerned with theta, so these two are constant, come out. इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? साइन थीटा डी थीटा. और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा. और इसकी लिमिट्स थीटा 1 थीटा 2. दीज आर द लिमिट्स. ओके, नाउ लेट्स अप्लाई इट. पहले थीटा 2 रखेंगे, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 1. दिस इज वर्क डन. कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक. घुमाने में इतना वर्क डन होगा. सो दिस इज ए जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन. अब देखिए, हमने इसमें क्या किया, इसको रोटेट किया. वी स्टार्ट फ्रॉम 0, टेक इट अप टू थीटा. तो कौन थीटा 1 और थीटा 2 में 0 कौन है? थीटा 1, जहां से स्टार्ट किया और कहां तक ले गए? थीटा 2. तो थीटा 2 की जगह क्या रखेंगे? थीटा. और थीटा 1 की जगह क्या रखेंगे? 0. अगर यहां 0 रखा तो cos 0 कितना होता है? 1. So for rotation from 0 to 90 degree, now 0 to theta. बताइए 0 to theta कितना हुआ? वर्क डन 0 to theta, this is equal to PE 1 माइनस कॉस थीटा. ये एक्सप्रेशन आ गया 0 to थीटा. हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम चाहे तो यहां भी रख सकते हैं 0 थीटा. इट विल कम लाइक दैट. ओके, नाउ अब आप इससे सब निकाल सकते हैं. जैसे वर्क डन फ्रॉम 0 to 90 डिग्री कैसे निकालेंगे? जीरो टू 90 बोलिए. 1 माइनस कॉस 90. Cos 90 is how much? 0. So this will be 1. So this is the work done from 0 to 90. Okay. Work done 0 to 180. Cos 180 is equal to minus 1. That minus and this minus plus 1. So this will be how much? ठीक है. अब ये चीज हमको समझ में आती है. कैसे? देखिए, यहां पर हमने डायपोल को रखा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, 90 डिग्री तक ले गए, कितना वर्क किया? और 90 डिग्री ले गए तो कितना वर्क हो गया? क्लियर? ठीक है. So you have to remember all these formulas. ये सब formulas की लिस्ट आपको मिली है कि नहीं? आपको मिली है. ठीक है, आप लोग भी सब लीजिए. So I have taken up, there are nearly 50 formulas in electrostatics. वो सारे आपको याद करने और सारे आपको पढ़ने हैं, सबके डेरिवेशन. तो ये सब formulas one after the other आते जा रहे हैं. These all you should remember. ओके, तो ये हो गया वर्क डन व्हेन वी रोटेट ए डायपोल. और डायपोल में एक छोटी सी चीज और होती है, दैट इज एनर्जी कंटेन्ड इन डायपोल.
डायपोल के पास कितनी एनर्जी होती है? तो आंसर है कि हम जितना वर्क डायपोल को करते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में ऐड होते जाती है और उतनी ही उसकी एनर्जी बढ़ते चले जाती है, राइट? तो एनर्जी को, ठीक है, अभी कर लेते हैं एनर्जी भी कितनी होती है। ओके, सो एनर्जी कंटेन्ड इन ए डायपोल, नाउ वी विल टेक इट एज एनर्जी इन ए डायपोल। एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। डज इट possess एनी एनर्जी? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। सबसे इक्विलिब्रियम की पोजीशन जिस पर डायपोल आने की हमेशा कोशिश करता है वो कौन सी है? व्हेन द इक्विलिब्रियम इज, या व्हेन द टॉर्क इज 0 एंड इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज दिस कंडीशन। ये किसी भी डायपोल के लिए, किसी भी डायपोल के लिए ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यहां पर रहना इसको सबसे अच्छा लगता है। ओके, क्या इस समय इसके पास एनर्जी होती है और अगर होती है तो कितनी होती है? हमको मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मिनिमम एनर्जी की कंडीशन में रहना पसंद करता है और ये जब भी हम डायपोल को छोड़ते हैं इस कंडीशन में आके खड़ा हो जाता है। होगा ये मिनिमम एनर्जी वाली कंडीशन होगी, पर वो मिनिमम एनर्जी कितनी, क्या वो 0 है कि नहीं है या कुछ और है? दिस वी वांट टू स्टडी। ओके, कैसे स्टडी करेंगे? तो उसका तरीका सुनिए। उसका तरीका ये है कि इसको हम इस कंडीशन में जब रखते हैं तो क्या इसको रखने में हमको कुछ वर्क करना पड़ा? जैसे मैंने आपसे पूछा, बताओ इसके पास एनर्जी है कि नहीं है? ये यहां पर अभी है, पहले कहां था? यहां था। यहां से यहां लाने के लिए मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ी, mgh, यहां रख दिया, ठीक है। और थोड़ी देर बाद आप कमरे में आए, आपने इसको देखा, आप बता सकते हैं कि इसके पास एनर्जी है कि नहीं है, क्योंकि हमको फॉर्मूला मालूम है कितनी, mgh, ठीक है ना। इसी तरह से ये मैं इसको कहां से लेके आया था? 0 कंडीशन से, जब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, जब इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, उस कंडीशन से मैं लेकर आया था। इस मास पर फोर्स लग रहा था। वैसे ही ये एक चार्ज है, इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि जब इस पर फोर्स नहीं लग रहा होगा, उस कंडीशन से मैं इसको उठाकर लाया फोर्स के अगेंस्ट और यहां रखा। इस चार्ज में जब फोर्स नहीं लग रहा था, तब वहां से मैं इसको उठाकर लाया और लाकर मैंने इसको यहां पर प्लेस कर दिया। कहां से लेके आया? जहां पर फोर्स नहीं लग रहा था। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कहां पर फोर्स 0 होता है? जहां पर E क्या है? 0। E कहां 0 होती है? याद रखिए आगे के लिए, E का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ये फॉर्मूला है, दिस इज सोर्स चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। R को इंफिनिटी बना दीजिए। हाउ मच इज E? 0। तो फिर से E0 कहां होता है? इंफिनिटी डिस्टेंस पर E0 होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज से इंफिनिटी डिस्टेंस पर जाइए, E0 मिलेगा, ठीक है। ओके, सो ये हमने इन प्रिंसिपल मान लिया। अब ये चलते 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 इंफिनिटी डिस्टेंस, यहां पर उस पे फोर्स क्या लग रहा था? 0। यहां से हमने प्लस Q को पकड़ा और इधर लाना शुरू किया।
जैसे ही हम प्लस क्यू को इधर लेके आते हैं हम क्या देखते हैं, फोर्स लगना शुरू हो गया। क्यों? आर छोटा होते जा रहा है और ई की वैल्यू बढ़ते जा रही है और ई के कारण फोर्स की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू को रिपेल करने की कोशिश करता है और हम क्या कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं। सो वी हैव टू डू वर्क ऑन इट। तो हम इस पर वर्क करते जाते कर करके ऐसे ढकेलते ढकेलते हम लेकर आए यहां तक, ये पूरा डिस्टेंस लेकर आए। तो हमने कुछ वर्क किया, यहां लाकर हमने उसको रख दिया। तो हमने जो एनर्जी खर्च करके वर्क किया वो एनर्जी हमारी कहां गई, हमारी बॉडी से निकल गई। कहां गई? इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। ठीक है ना, ये आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है। जिस पार्टिकल पर हम वर्क करेंगे माई एनर्जी इज ट्रांसफर टू दैट पार्टिकल, और इस पार्टिकल पर हमने वर्क किया, माई एनर्जी इज ट्रांसफर टू दिस पार्टिकल। लेट अस से दैट एनर्जी इज U1। ठीक है, U1 एनर्जी खर्च करके हम यहां तक इसको ले आए और इसको यहां खड़ा कर दिया, हो गया। अब माइनस क्यू एक चार्ज हमने पकड़ा यहां पर, प्लस क्यू पर कितना फोर्स लगता था, तो माइनस क्यू पर कितना फोर्स लगेगा, माइनस क्यू ही उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस पर वर्क डन भी कैसा होगा, निगेटिव। उस पर वर्क डन मैं कैसा कर रहा था, पॉजिटिव, फोर्स की डायरेक्शन में वर्क कर रहा था, फोर्स भी ऐसा लगाता था, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे करता था। अब माइनस को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खुद ही खींच रहा है, तो मुझे ऐसा रोक के रखना पड़ता है कि कहीं ये इधर भाग मत जाए। तो फोर्स ऐसा लगाता हूं लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे करता हूं। सो वर्क डन इज हाउ, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। तो माइनस चार्ज पर वर्क डन कितना होगा, नेगेटिव वर्क। लेकिन Q वही है, E वही है, इसलिए फोर्स QE सेम है, डिस्प्लेसमेंट वही है, इसलिए वर्क डन की क्वांटिटी सेम है। तो माइनस क्यू चार्ज को हम यहां से लेकर आते हैं, माइनस क्यू ऐसे, प्लस क्यू को हम यहां पर लेकर आए थे, हमने वर्क किया था U1 यहां तक। अब माइनस क्यू को इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं यहां तक, तो कितना वर्क हुआ, आंसर U1, बट दिस वर्क इज नेगेटिव। प्लस पे कितना वर्क किया, कोई भी एक क्वांटिटी, प्लस U1, माइनस पे कितना वर्क किया, माइनस U1, और ये माइनस क्यू कहां तक पहुंचा है, यहां तक पहुंचा, अभी यहां तक नहीं आया। ठीक, यहां पर हमने कितनी एनर्जी खर्च की, प्लस U1, इस पर कितनी एनर्जी खर्च की, माइनस U1, टोटल कितनी एनर्जी खर्च हुई, जीरो। कितनी हुई, जीरो। और जीरो एनर्जी में दोनों यहां तक पहुंच गए, प्लस और माइनस। लेकिन अभी डाइपोल बना नहीं। डाइपोल कब बनेगा, जब माइनस को हम कितनी दूर और ले जाएंगे, उतना वर्क और करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दैट वर्क which is done on this for bringing minus q from this location to this location। ठीक है, इस लोकेशन का नाम हम दे देते हैं, let us say MN। और अभी तक जितनी चीज हमने पढ़ी उसको थोड़ा लिख लेते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा एक मिनट इधर समझ लीजिए, माइनस क्यू को यहां तक हम ले आए थे, लेकिन जाना कहाँ है माइनस क्यू ने, यहां तक। कितना और डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 2L। तो 2L डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क होगा, आंसर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो माइनस क्यू इज ब्रॉट फर्दर, कहां से कहां तक, N to M, N to M। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, 2L। सो हाउ मच इज द वर्क डन, force into displacement, force is minus QE, displacement is 2L. So how much is this work? This work done is Q into 2L क्या होता है, P, so this becomes minus PE।
अब टोटल वर्क डन कितना हुआ? टोटल वर्क डन ऑन बोथ द चार्जेस, टोटल वर्क ऑन बोथ चार्जेस, एक U1 दूसरा माइनस U1 और तीसरा माइनस PE। तीनों पोर्शन याद है आपको? ये प्लस Q के लिए था, ये माइनस Q कहां तक लाए हम? N तक लाए, और उसके बाद माइनस Q को यहां से यहां तक ले गए, माइनस PE वर्क डन हुआ। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? दिस इज द एनर्जी स्पेंट बाय मी टू ब्रिंग दिस टू दिस, और यहां लाके हमने खड़ा कर दिया। तो अब तक हमने इस पे जितना काम किया वो क्या बन गई? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर potential energy of dipole kept along E is minus P dot E. Energy is a scalar quantity, therefore this is a scalar product. तो क्या इसके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में एनर्जी जीरो है? आंसर नो। कितनी एनर्जी है? माइनस P। ये इसके पास एनर्जी होती है हर डायपोल के पास व्हेन इट इज केप्ट इन ए न्यूट्रल कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब अगर हम इसको घुमा दें तो क्या होगा? और वर्क करना पड़ेगा, घुमाने में हमको और वर्क करना पड़ेगा, वो एनर्जी इसमें और ऐड होती जाएगी। तो चलो इसको घुमा के देख लेते हैं, ठीक है? ओके, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो मेरे से लिखने में गलती हो गई, दिस इज माइनस P, ये देखो माइनस लिखा है, ठीक है? तो नेट कितना होगा? माइनस P। तो डायपोल के पास नेगेटिव एनर्जी होती कि पॉजिटिव? नेगेटिव, याद रखिए। ये हमने इसको घुमाना शुरू किया, ओके। इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? माइनस PE। अभी तक हमने इस पे कितना वर्क किया? ये तो इस पोजीशन में डायपोल के पास कितनी एनर्जी होती है? माइनस P। अब हमने इसको घुमाया 90 डिग्री। याद करके बताइए, जब हम 90 डिग्री घुमाते हैं तो कितना वर्क करते हैं? 90 डिग्री घुमाने से वर्क डन 0 to 90 कितना? यस, पिछले पन्ने पे लिखा है आपने, 90 डिग्री घुमाने से इसके पास ओरिजिनल एनर्जी कितनी थी? माइनस PE। घुमाने से हमने कितना वर्क किया?
वर्क ड्यूरिंग रोटेशन। अब बताइए नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? यस, माइनस पीई प्लस पीई दोनों मिलाकर 0। तो जब डायपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, अब यहां पर कितना घुमा चुके हैं? 180 डिग्री। यहां शुरू में इसके पास कितनी एनर्जी थी? माइनस पीई। 180 घुमाने में हमने कितना वर्क किया? 2 पीई। नेट एनर्जी कितनी हो गई? यस, प्लस पीई। ठीक, 270 का कर लीजिए कैलकुलेशन। 270 पे आपने वर्क डन नहीं निकाला हुआ है। दिस विल बी 0। 270 पे वर्क डन, फिर से P कम होता है क्योंकि डायपोल खुद वर्क कर लेता है, हमको उस पर वर्क नहीं करना पड़ता। दीज आर दी 4 कंडीशंस। अभी हमने जो निकाला किस तरीके से, पुरानी एनर्जी में वर्क डन को ऐड करके। आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी फॉर्मूला ये हमने निकाला था कहीं पे, एनर्जी ऑफ ए डायपोल। रिमेंबर, कहीं निकाला है कि नहीं निकाला है? ओके, एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए एनर्जी का फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? R, और इसको क्या लिख सकते हैं? ये एक R ऊपर और एक नीचे, ये क्या बन गया? टॉर्क। और ये क्या बन गया? थीटा। टॉर्क इनटू थीटा। ओके, तो ये इन दोनों के बीच कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। तो ये भी क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। सो दिस इज एनर्जी, होता है टॉर्क इनटू थीटा। अब फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। टॉर्क थीटा, दिस इज the zero energy of dipole is when the dipole is at right angle to electric field. That we take as our starting condition. ये, और यहां से हम इसको घुमाकर लाते हैं ऐसे। कहां तक घुमाकर लाएंगे? जबकि E के साथ कितना एंगल बन जाएगा? थीटा। तो पहले कितना एंगल था? 90। 90 से यहां तक लेकर आए। क्यों 90 से स्टार्ट करते हैं? क्योंकि 90 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। ओके, सो नाउ इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम बाय 2 थीटा, हाउ मच विल बी वर्क डन? टॉर्क डॉट डी थीटा, एंड दिस टॉर्क डॉट डी थीटा कहां से लेना है? 90 से लेके थीटा तक। दिस गिव्स दी टोटल एनर्जी फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। यहां से ऐसा घुमाना है। तो जब हम एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? 90 डिग्री। फाइनल पॉइंट कौन सा है? E के साथ थीटा एंगल। ओके, सो नाउ वी डू दिस। दिस बिकम्स PE साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 90 to theta. So once we place theta here,
this is minus cos theta. Once we place 90 here, this becomes 0. So this is minus PE cos theta. अब PE cos theta, where P and E are vector quantities and this energy is a scalar quantity. So how we can write it? We can write it as this: U is equal to P dot E. और पहले हम क्या बना चुके हैं? पहले हम बना चुके हैं टॉर्क इज इक्वल टू so torque is P cross E. How much is magnitude? PE sin theta. How much is energy? P dot E. What is magnitude? PE cos theta. अब इस पोजीशंस को देखकर बताइए in which condition energy is minimum. At 90 degree energy is minimum and this is wrong. अरे जीरो छोटा होता है कि माइनस पीई छोटा होता है? राइट. तो मिनिमम एनर्जी किस कंडीशन में है? यस, दैट इज मिनिमम एनर्जी. एंड एवरी सिस्टम इन अवर नेचर विश टू रिमेन इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम एनर्जी. इसलिए डाइपोल कहां रहना पसंद करता है? along the E, that is 0 डिग्री. ठीक है. तो एनर्जी फिर से, डाइपोल की एनर्जी 0 कब होती है? when it is, फिर गलत. हाँ, यही आपको याद करना है और यही स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. जीरो एनर्जी इज नॉट मिनिमम एनर्जी. दोनों शब्दों को अलग अलग याद करिए. when is the energy 0? when it is perpendicular to E. when is the energy minimum? along P. and how much is that minimum energy? minus P. समझ आया? so this you must remember in case of dipoles. यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए. okay, so now we have done everything in dipole. how much electric field it gives on the axial line, on the equatorial line, at any general condition. Then how it depletes? It depletes very faster because it is 1 upon r cube. Then if a dipole is placed in an external field, how much torque it experiences, how much work has to be done, and what is its energy. So every dipole has got certain energy in when kept in electric field. When this energy is 0, now you know that. What is this energy, negative or positive? If there is a simple one line question, the dipole energy when it is kept in electric field is positive or negative? So we will take it if it is placed in the neutral condition and our answer will be negative. ठीक है. तो डाइपोल की एनर्जी हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव एनर्जी होती है. एंड व्हेन वी गो ऑन वर्किंग ऑन इट, द एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू फ्रॉम माइनस टू दिस इज यस नेट फ्रॉम माइनस टू जीरो, जीरो टू प्लस. जितना घुमाते जाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल. एंड नाउ वी विल डू सर्टेन न्यूमेरिकल्स and MCQs based on dipole, which are very interesting. Okay, so we will do this in the further classes, and next class we will go for Gauss theorem, or next class we will go how to find electric field due to different charge distribution.